Very good morning, students. Now we comes with new unit, that is unit number 2, and that is a partial differentiation. Now what is that partial differentiation? In previous unit we have seen a successive differentiation, and there we have seen a total derivative, that is differentiation of y with respect to x, that is dy by dx. But here we consider a partial differentiation. Now how we define the partial differentiation? Partial differentiation is the process in which we are differentiating a dependent variable with respect to a single independent variable, keeping other variable as a constant. मतलब अब partial differentiation में process कैसी रहती है? यहाँ पे अगर dependent variable हम consider करेंगे suppose u, so u should be a function of two or more independent variable. यहाँ पे u क्या रहता है? u is a function of two or more independent variable, that is suppose we consider here as a u is a function of x and y. अब u अगर x और y दोनों का फंक्शन है, so obviously we can differentiate that u partially with respect to x, keeping y constant, as well as we can differentiate u partially with respect to y, keeping x constant. तो देखिए अब कैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं. So if you take a differentiation of u partially with respect to x, keeping y constant, and how we define that differentiation, that is a del u by del x. That is del u by del x is nothing but a partial differentiation of that u with respect to x. यहाँ पे हमने constant किसको रखा है? Here we are keeping the y as a constant. We keep the y as a constant, and that differentiation of that u with respect to x, that is partial differentiation, is denoted by that symbol, that is del u by del x. That del denotes the partial differentiation. Second, if you consider the differentiation of that u with respect to y, that is a partial differentiation of u with respect to y, keeping यहाँ पे क्या रहता है? x constant रहता है. So how we can write that is a partial differentiation of partial differentiation of u with respect to what? With respect to y. और यहाँ पे हमने क्या constant रखा है? Here we keeping x constant. We have put here x constant. So in this way we get that type of differentiation, that is called as a partial. हायर ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स भी यहाँ पे रहते हैं. सपोज हमें लेना है del 2u by del x2, दैट इज अ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x. तो वो डिनोट कैसे किया जाता है? दैट इज अ del x of del u by del x. दैट इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दैट u विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज del 2u by second partial derivative of u with respect to x, that is del 2u by del x2, that is equals to del x of del u by del x. मतलब ये जो del u by del x है उसको हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, so that gives del 2u by del x2. Similarly we can differentiate that u second time with respect to y, that is denoted by del 2u by del y2, and that is equals to del y of del u by del y. वो डिफाइन किया जाता है ऐसे. ओके, मिक्स अगर डेरिवेटिव रहे जैसे del x of del u by del y, so that is equals to, we can write that is del 2u by del x del y. उसको ऐसे हम लिखते हैं अगर यहाँ पे मिक्स डेरिवेटिव. that means we have del u by del y, we have to differentiate that with respect to x. तो वो कैसे लिखा जाएगा? that is del 2u by del x del y. ओके, अब सेकंड रिवर्स रहा प्रोसेस, that is del y of del u by del x. अगर del u by del x को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं with respect to y, so it can be written as del 2u by del y del x. तो यहाँ पे फर्क क्या है? यहाँ पे पहले x है, यहाँ पे पहले y है. और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दोनों के रिजल्ट जो रहते हैं, that is del 2u by del x del y and del 2u by del y del x, both have the same results. इसके आंसर सेम आते हैं हमेशा. So there is the relation, that is del 2u by del x del y, that is equals to del 2u by del y del x. Okay, तो ये रिजल्ट हमेशा ध्यान में रखना. So these are some notation of differentiation, partial differentiation, and now we will see the problems which are based on that partial differentiation.
Now we will continue the problem of that partial differentiation. Here we have given u is equals to log of tan x plus tan y plus tan z, and we have to prove that sin 2x del u by del x plus sin 2y del u by del y plus sin 2z del u by del z, that should be equals to 2. That we have to prove from given function. So here we write what we have given. Here we have given u is equals to log of tan x plus tan y plus tan z. That is given function. Now if you observe that here u is a function of how many variables? There is a term x of y and z also. तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में आ जाएगी कि u is a function of x y z. यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब आप u को पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू z. अब यहाँ पे अगर रिजल्ट में देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको del u by del x, del u by del y, del u by del z की टर्म्स है. सो ऑब्वियसली वी हैव टू डिफरेंशिएट दैट टू गेट द अबव रिजल्ट्स. तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी से हियर दैट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x or we differentiate with respect to x, or we say partially differentiate. We say partially differentiate with respect to x. अगर x के साथ हम differentiate करेंगे तो other variables that is keeping y and z constant. यहाँ पे y और z क्या रहेंगे वो, अब अगर आपने लिखा भी नहीं ये स्टेप, so by default you can write del u by del x by keeping y and z constant. So we write here del u by del x. So what is our del u by del x? अब हमें पता है that function should be in the form of log, और log x का डेरिवेटिव सबको पता है, log x का डेरिवेटिव रहता है 1 by x. तो सबसे पहले log के फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव होगा 1 upon tan x plus tan y plus tan z. अब ये तो हो गया हमारा log ऑफ दैट होल टर्म का डेरिवेटिव. बट अब ये जो ब्रैकेट है tan x प्लस tan y प्लस tan z, इसका भी डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा. बट विथ रिस्पेक्ट टू हमें क्या लेना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एंड z कांस्टेंट. अब अगर विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो सिंपली tan x का डेरिवेटिव आएगा और बाकी tan y का डेरिवेटिव 0 होगा और tan z का भी 0 होगा बिकॉज y एंड z आर कांस्टेंट. तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, यस tan x का डेरिवेटिव दैट इज अ sec स्क्वायर ऑफ x. सो इन दिस वे वी टेक अ del u by del x. सिमिलरली वी टेक अ del u by del y. अब del u by del y मतलब क्या होगा, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग रिमेनिंग टर्म दैट इज x एंड z की टर्म यहाँ पे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. सो वी टेक अ del u by del x दैट इज वी डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, किसके साथ करने वाले हैं, y के साथ. यहाँ पे हमने क्या कांस्टेंट रखा है, कीपिंग x एंड z कांस्टेंट. तो देखो अब क्या होगा, del u by del y हमारा, ओके तो थोड़ा नीचे ले लेते हैं हम. सो दैट इज अ del u by del y दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अगेन लॉग के फॉर्म में है 1 अपॉन tan x tan y प्लस tan z. अब जब हम इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेंगे tan x प्लस tan y प्लस tan z का विथ रिस्पेक्ट टू y, तो अदर टर्म्स tan z और tan x की टर्म क्या रहेंगी, यस इट इज अ कांस्टेंट रहेंगी. अब अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा. सिंपली tan y का डेरिवेटिव हम लेंगे दैट इज अ sec स्क्वायर ऑफ y. ओके एंड सिमिलरली वी कैन राइट द थर्ड डेरिवेटिव दैट इज अ del u by del z. अब अगर del u by del z ले रहे हैं सो ऑब्वियसली वी डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू z. यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा, यस यहाँ पे y और x कांस्टेंट रहेगा. तो डेरिवेटिव कैसे फॉर्म में आएंगे, दैट इज 1 अपॉन tan x प्लस tan y प्लस tan z है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पे z के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और x कांस्टेंट है. tan z का डेरिवेटिव निकलेगा, tan z का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर ऑफ z, और अदर टर्म्स हमारी इसके डेरिवेटिव हो जाएंगे 0 एज दीज आर कांस्टेंट. सो इन दिस में वी गेट अ del u by del x, del u by del y and del u by del z. अब अगर थोड़ा सा आप इस रिजल्ट की तरफ देखोगे तो LHS में क्या है, देयर इज अ sin 2x del u by del x, sin 2y del u by del y, sin 2z del u by del z. तो क्या करेंगे हम, del u by del x को मल्टीप्लाई करेंगे sin 2x से, del u by del y को sin 2y से करेंगे और del u by del z को sin 2z से हम मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे कि हमें रिजल्ट मिल जाए यहाँ पे 2.
I write on that side here. So we take the consider the LHS. We consider the LHS जो हमें रिजल्ट में प्रूव करनी है. So that is a sin 2x del u by del y प्लस साइन, सॉरी यहाँ पे है del u by del x, sin 2y del u by del y प्लस sin 2z del u by del z. Now we put one by one all the values. तो sin 2x को हम कैसे लिखते हैं? That can be written as 2 sin x cos x. तो वो हम लिख लेंगे क्योंकि हमें रिजल्ट और हमारा रिजल्ट क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, इसलिए. सो वी राइट दैट एज अ, या फिर पहले एज इट इज रख देते हैं, देखेंगे क्या क्या होता है. तो यहाँ पे सो दैट इज अ साइन 2x, यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी वैल्यू, दैट इज अ sec square of x upon tan x प्लस tan y प्लस tan z. अब अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे आप तो हर एक टर्म में क्या कॉमन है, 1/tan x प्लस tan y प्लस tan z, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीनों टर्म में del u by del x में भी del u by del y और del u by del z. क्या कर सकते हैं हम? यस, वी टेक दैट कॉमन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेते हैं. दैट इज 1/tan x प्लस tan y प्लस tan z. मतलब हमें कैलकुलेशंस करने में बहुत इजी जाएंगे ये. उसके बाद इन ब्रैकेट, अब इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे हम? इन ब्रैकेट हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म sin 2x. sin 2x के साथ अब del u by del x की बची हुई टर्म, अब del u by del x से हमें 1/this term we take common, remaining there is a sec square of x. ओके, उसके बाद प्लस यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है हमारे sin 2y. sin 2y के साथ del u by del y की रिमेनिंग टर्म, दैट इज अ sec square of y. उसके बाद प्लस sin 2z और del u by del z की रिमेनिंग टर्म, दैट इज अ sec square of z. वी कंप्लीट द ब्रैकेट. हम कर देते हैं ब्रैकेट को कंप्लीट. अब सबको पता है कि sin 2x sin 2y इसका रिजल्ट क्या होगा, दैट इज अ 2 sin x cos x. हम लिख सकते हैं इसको 2 sin x cos x. सिमिलरली sin 2y को भी ऐसे लिखेंगे 2 sin y cos y. sec square x को हम लिख सकते हैं sec square x, दैट इज नथिंग बट 1/cos square of x. We can write that sec square of x as a 1/cos square of x. तो क्या हो जाएगा वहां पे, एक एक टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे. तो देखो कैसे होगा. सो दैट इज अ, वी राइट हियर दैट sec square of x is equals to 1/cos square of x. ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं. सो वी कैन यूज दैट फॉर ईच टर्म हियर रिलेशन. सो दैट वी राइट LHS is equals to क्या होगा, ये तो टर्म एज इट इज रहेंगी हमारी, दैट इज अ tan of x प्लस tan y प्लस tan z. ओके, अब जो ब्रैकेट में टर्म है हमारी, दैट इज 2 sin x, इसको लिखेंगे 2 sin x cos of x इंटू 1/cos square of x. सेकेंड टर्म भी ऐसे लिखेंगे, दैट इज प्लस 2 sin y cos y अपॉन sec square y को लिखेंगे हम cos square of y. उसके बाद नेक्स्ट टर्म की तरफ आएंगे, इट कैन बी रिटन एज 2 sin z cos of z और sec square of z इज नथिंग बट cos square of z हो जाएगा. ओके, अब हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी जाएगा. यहाँ पे cos square x है और यहाँ पे है हमारा cos of x. तो अब cos square x और cos x से एक पावर कम हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे भी cos z, एक cos z इसके साथ कैंसिल होगा, एक cos y, एक cos y इसके साथ कैंसिल होगा. सो फाइनली व्हाट इज रिमेनिंग फॉर LHS. सो LHS इज इक्वल्स टू व्हाट वी गेट फाइनली, LHS इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या रहेगा 2 sin x, यहाँ पे रहेगा cos x. अब हमें पता है कि 2 sin x अपॉन cos x इज नथिंग बट tan x. बट बिफोर दैट वी राइट दैट टर्म 1/tan x प्लस tan y प्लस tan z लिख लेते हैं हम. अब न्यूमरेटर में क्या आएगा हमारा, व्हाट वी गेट इन अ न्यूमरेटर, यहाँ पे हमारा 2 sin x cos x, दैट इज अ 2 tan x आ जाएगा. उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे भी cos sin y cos y हो जाएगा, दैट इज अ 2 tan y आ जाएगा. और लास्ट टर्म में sin z cos z, दैट इज अ 2 tan of
z आ जाएंगे. सो इन दिस वे वी गेट द न्यूमरेटर इन दिस फॉर्म. ओके, अब आप लोगों को ध्यान में आएगा कि हर एक टर्म में न्यूमरेटर में क्या है, 2 कॉमन है. सो आई विल रब ऑन दैट साइड और हम वहां से 2 कॉमन ले लेंगे. सो व्हाट वी गेट फाइनली वी गेट LHS इज इक्वल्स टू 2 कॉमन निकल जाएंगे न्यूमरेटर से. सो देयर इज रिमेनिंग tan x प्लस tan y प्लस tan z अपॉन आ जाएगा हमारा tan x प्लस tan y प्लस tan z. अब क्या हो गया, बोथ गेट अ कैंसल और सिंपली यहाँ पे बचा क्या, देयर इज एग्जिस्ट ओनली 2. तो यही हमें प्रूव करना था कि व्हेन यू कंसीडर द LHS वी हैव कंसीडर दैट LHS और फाइनली LHS हमें क्या मिली 2 और 2 ही हमारे RHS है. सो व्हाट वी से, देयरफॉर वी सेड दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS. दोनों साइड हमारी क्या हो गई, सेम आ गया. इन दिस वे वी प्रूव द रिजल्ट दैट sin 2x del u by del x plus sin 2y del u by del y plus sin 2z del u by del z is equals to 2. Or we can write here, or we can put that term as it is, that we can say therefore sin 2x del u by del y plus sin 2y del u by del y plus sin 2z del u by del z, that we have proved that is equals to 2. And in this way we prove that result by using a partial differentiation. So hope you understand that. बहुत ही easy problem है, पेपर में भी आ चुका है 1-2 बार. So revise that and write down in your notebook. Now students we come with a second problem. यहाँ पे हमें ये function दिया है u is equals to log of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz and we have to prove first result del u by del x plus del u by del y plus del u by del z equals to 3 upon x plus y plus z. Second is del by del x plus del by del y plus del by del z whole square into u equals to minus 9 upon x plus y plus z whole square. So one by one we prove all the results. सबसे पहले तो हम function लिख लेंगे. What we have given, that is u is equals to log of x cube plus y cube plus z cube minus 3xy z, that is our function. And now we partially differentiate that. यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि u is a function of x, y, z. तो partially हम u को differentiate कर सकते हैं with respect to x, with respect to y, with respect to z. हम उसके partial derivatives निकालेंगे, add करेंगे, and then we get the first result. तो सबसे पहले हम लिखते हैं del u by del x. अब del u by del x क्या रहता है, आप सबको पता है, that is a partial differentiation of u with respect to x, keeping y and z constant. तो यहाँ पे सबसे पहले log का derivative तो 1 upon x cube प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. अब हमें इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है बट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो x की जो टर्म है उसका डेरिवेटिव होगा x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, y का 0 होगा, z का 0 होगा. यहाँ पे भी x की टर्म है तो x का डेरिवेटिव 1 होगा बट उसके साथ है 3yz तो वो रहेंगे माइनस 3yz. तो ये हो गया आपका डेल u बाय डेल x. ओके, अब उसके साथ हम निकालेंगे डेल u बाय डेल y. हम सेकंड टर्म लेते हैं हम यहाँ पे डेल u बाय डेल y. सो डेल u बाय डेल y क्या होगा आपका, यहाँ पे 1 अपॉन अगेन दैट ब्रैकेट x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz ऐसे फॉर्म में, और उसका रिपीट डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू y. अब विथ रिस्पेक्ट टू y जब आप करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएंगी. y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर माइनस यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 होगा, रिमेनिंग टर्म माइनस 3xz. ओके, सो इस तरह से हमें मिलेंगे डेल u बाय डेल y. सिमिलरली यू कैन राइट डेल u बाय डेल z, दैट इज इक्वल्स टू अगेन लॉग ऑफ दैट टर्म का डेरिवेटिव 1 अपॉन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, रिपीट डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू z. तो ये टर्म 0, सो z का डेरिवेटिव 3z स्क्वायर माइनस 3x, z का डेरिवेटिव 1 and remaining term minus 3x into 1. तो in this way we get all that derivatives. अब इस साइड हम क्या करेंगे, we take the addition of all that term and therefore we write here del u by del x plus del u by
डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो अब एक बात आप लोगों को ध्यान में आ ही गई होंगी, तो ये जो टर्म है डिनोमिनेटर की एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, दैट इज अ कॉमन टर्म टू ईच टर्म। सो सबसे पहले हम इसको बाहर ले सकते हैं, तो उसको बाहर ले लेंगे। उस टर्म को हम लिखेंगे 1 अपॉन, या फिर यहाँ भी हम यहाँ नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं इसको, ये टर्म कॉमन है तो ये हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा है, फर्स्ट टर्म है हमारी 3x² माइनस 3yz, उसके बाद प्लस 3y² माइनस 3xz प्लस 3z² माइनस 3xy, ऐसे फॉर्म में आएंगे अब हमारे टर्म इक्वल्स टू दिस, एंड देयरफॉर वी राइट हियर। अब एक रिजल्ट जहां पे ध्यान में रखना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का रिजल्ट क्या रहता है, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू, ये रिजल्ट रहता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू x square plus y square plus z square, that is a factorization of that term, into xy minus xz minus zy और yz, ऐसे टर्म रहेंगी यहाँ पे। अब अगर आप एक बार इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे तो फाइनली यू गेट दैट सेम टर्म, आपको ये सेम टर्म मिलने वाली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, but you have to factorize that term in this way, that is x plus y plus z is into in bracket x square plus y square plus z square minus xy minus xz minus yz। ये जो स्टेप है यहाँ पे इसको नोट डाउन करना, नोट दिस स्टेप, इट्स ए इम्पोर्टेंट स्टेप बिकॉज ये आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं डिनोमिनेटर में, और ऑटोमेटिकली आप अगर यहाँ पे देखोगे न्यूमरेटर में तो 3 हर एक स्टेप में है, तो 3 अगर कॉमन निकल जाएंगी तो सेकंड टर्म आपकी यही आने वाली। तो एक बात अगर ध्यान में रखना कि आपको ये इसका फैक्टराइजेशन ध्यान में रहा भी नहीं, तो एक रखना कि जो न्यूमरेटर की टर्म है वो एक तो आती है, उसके साथ रिमेनिंग टर्म रहेंगी आपकी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इतना ध्यान में रखना कि न्यूमरेटर की एक टर्म है और उसके साथ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो न्यूमरेटर को अब हम कैसे लेंगे, therefore LHS is equals to, LHS is nothing but del u by del x, that is equals to न्यूमरेटर से हम 3 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे रहेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस टर्म हम पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जो निगेटिव टर्म है माइनस ऑफ यहाँ पे वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, इसको लिख लेते हैं बाद में। और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, and then that term get a cancel, and finally what you get, therefore LHS is what your LHS, that is a del u by del x plus del u by del y plus del u by del z, that is equals to 3 upon x plus y plus z। So in this way you get that first result जो हमें प्रूव करना था। अब सिमिलरली हम प्रूव करेंगे ये सेकंड रिजल्ट। अब हम आते हैं सेकंड रिजल्ट की तरफ। Now we have to prove that second result, that should be del del x plus del del y plus del del z whole square into u is equals to minus 9 upon x plus y plus z whole square। ये हमें रिजल्ट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम LHS कंसिडर करेंगे, दैट LHS इज इन दिस वे, दैट इज del by del x plus del by del y plus del by del z दैट ब्रैकेट स्क्वायर into u। अब इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं दिस टर्म को, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर है मतलब दैट टर्म कैन बी रिटन 2 टाइम्स, वी कैन राइट दैट टर्म्स एज अ 2 टाइम्स। इसको देखो कैसे लिखेंगे हम, दैट इज del del x प्लस del del y प्लस del del z इंटू सेकेंड ब्रैकेट हम लिखेंगे अगेन del del x प्लस del del y प्लस del del z इंटू यहाँ पे रहेगा आपका u।
सो दैट इज इक्वल्स टू, अब फर्स्ट ब्रैकेट तो हम एज इट इज रखेंगे, दैट इज डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड, और जो सेकंड ब्रैकेट है हम u से यहाँ पे अप्लाई करेंगे डेल डेल एक्स ऑफ u प्लस डेल डेल वाई ऑफ u प्लस डेल डेल जेड ऑफ u. सो वी अप्लाई दैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑन दैट फंक्शन u. तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, पहले डेल डेल एक्स ऑफ u दैट इज डेल u बाय डेल एक्स प्लस सेकंड टाइम डेल डेल y ऑफ u दैट इज डेल u बाय डेल y प्लस थर्ड टाइम डेल डेल z ऑफ u दैट इज डेल u बाय डेल z. तो ऐसे फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू दिस. अब हमारे पास रिजल्ट है फ्रॉम इक्वेशन 1 कि डेल u बाय डेल x प्लस डेल u बाय डेल y प्लस डेल u बाय डेल z इज नथिंग बट 3 अपॉन x प्लस y प्लस z. तो इस टर्म को हम रिप्लेस करेंगे 3 अपॉन x प्लस y प्लस z. सो वी राइट दैट टर्म एज अ डेल बाय डेल x plus del by del y plus del by del z whole square into u can be written in this way, that is del by del x plus del by del y plus del by del z. या फिर आप इसको LHS भी कंसिडर कर सकते हैं, या LH we can write that LHS is equals to, LHS क्या है हमारी ये साइड है, so we can write LHS is equals to, so यहाँ पे जगह भी बच जाएंगी, that is equals to del by del x प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड, और जो हमारा डेली जो वैल्यू है दैट इज 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ये रिजल्ट हमने कहाँ से लिया है, बाय यूजिंग, वहां पे रेफरेंस दे रहा है उसका, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. सो इन दिस वे वी राइट दैट LHS. अब हम क्या करेंगे, ये फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, सो हम डेल डेल एक्स लेंगे, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे दिस फंक्शन को, उसके बाद प्लस डेल डेल वाई से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे प्लस डेल डेल जेड ऑफ दैट टर्म. सो ऐसे 1 बाय 1 हम सभी टर्म से इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी इन दिस फॉर्म. सो देखेंगे हम हाउ वी गेट दैट रिजल्ट. ओके, नाउ दैट स्टेप आई हैव रिटन ऑन दैट साइड. यहाँ पे मैंने टर्म सेपरेट कर ली है, 3 कांस्टेंट है यहाँ पे, तो 3 को सबसे पहले बाहर ले लिया, देन डेल डेल एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल डेल वाई ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल डेल जेड ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ऐसे फॉर्म में हमने लिख लिया. अब ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है फंक्शन, दैट फंक्शन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 1 बाय एक्स. अब हमें पता है कि जब हम डेरिवेट करते हैं 1 बाय एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे भी उस फॉर्म में है ये फंक्शन, तो उस फॉर्म में उसका डेरिवेटिव होगा. तो LHS इज इक्वल्स टू, हाउ वी राइट LHS is equals to, पहले तो 3 as it is लिख लेते हैं, when you take a del del x of that, so it can be written as minus 1 upon x plus y plus z ब्रैकेट का स्क्वायर, और रिपीट डेरिवेटिव जब इस ब्रैकेट का लेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव होगा 1, बाकी टर्म का डेरिवेटिव होगा 0, बिकॉज वी आर पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो ऐसे केस में क्या रहता है, y और z 0 रहते हैं, बट x का डेरिवेटिव 1 है, तो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन दैट 1 बिकॉज 1 into 1 इट बिकम अ 1. उसके बाद सेकंड टर्म की तरफ जाएंगे हम, प्लस इसको ब्रैकेट कर देते हैं प्लस. अब यहाँ पे अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, अगेन माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, रिपीट डेरिवेटिव अगेन है 1. उसके बाद जाएंगे हम प्लस माइनस ऑफ दैट 1 अपॉन डेल डेल जेड ऑफ दैट टर्म x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर, रिपीट डेरिवेटिव ऑफ दैट इज अगेन 1. हम यहाँ पे कर लेते हैं ब्रैकेट कंप्लीट. सो LHS इज इक्वल्स टू क्या होगा 3. अब यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तीनों टर्म माइनस है हमारी, और तीनों टर्म्स क्या है हमारी सेम है. अब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की हम क्या करेंगे, यस वी कैन मेक द एडिशन ऑफ न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सो वी टेक दैट डिनोमिनेटर x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1. तो फाइनली -1 -1 -1 दैट इज 3 टाइम्स, सो 3 into -3 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, दैट 3 into -3 इज नथिंग बट अ -9. अब हमारे पास हमारे LHS क्या है, यस, सो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं दैट इज अ 3 into -3 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट अ -9. सो फाइनली वी राइट LHS is nothing but that
del by del x plus del by del y plus del by del z whole square into u is equals to minus 9 upon x plus y plus z whole square. So in this way we get the second result of that problem. Okay, so in this way we prove that problem second result. Hope you understand that. यहाँ पे हमने ब्रैकेट को सेपरेट किया था, फिर ये फर्स्ट ब्रैकेट हमने u पे अप्लाई की तो ये मिला हमें. Then by using equation 1 we write the result of that term and then separately we apply the partial derivatives on that bracket here, and then after getting the derivative we simplify the result and that should be in this way. So hope you understand that. और कुछ प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए यहाँ पे दूंगी. I have written one problem here. If z of x plus y is equals to x square plus y square, then we have to prove that is del by del z minus del z by del x minus del z by del y whole square equals to 4 into in bracket 1 minus del z by del x minus del z by del y. अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना थोड़ा आप लोगों को मैं बता देती हूँ. इस फॉर्म में आपका फंक्शन है तो यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ z. z इज इक्वल्स टू ये टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो टर्म है LHS की यू हैव टू ट्रांसफर टू दैट साइड, सो ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगी x प्लस वाई. और देन यू गेट दैट यू हैव, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे z दिख रहा है आपको फंक्शन ऑफ x एंड y. सो ऑब्वियसली यू कैन डिफरेंशिएट दैट z पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू y. और यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्वोशिएंट रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का. सो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड डेल z बाय डेल x, देन डेल z बाय डेल y. उसके बाद फिर आप निकालो RHS. डेल z बाय डेल x डेल z बाय डेल y निकालने के बाद यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल z बाय डेल x माइनस डेल z बाय डेल y. इसकी वैल्यू आप निकाल के रख दो एंड देन यू कम्स ऑन दैट साइड दैट इज 1 माइनस डेल z बाय डेल x माइनस डेल z बाय डेल y. और इनकी जो वैल्यूज है डेल z बाय डेल x और डेल z बाय डेल y की जो आपने निकाली है फ्रॉम दैट इक्वेशन यू हैव टू पुट हियर. लेकिन तो एक मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप डेल z बाय डेल x निकालोगे सो हाउ यू कैन गेट द डेल z बाय डेल x. यहाँ पे न्यूमरेटर में x का फंक्शन है तो सबसे पहले आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि y स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर x प्लस y रिमेनिंग एज इट इज माइनस सेकंड टाइम न्यूमरेटर रिमेनिंग एज इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 अपॉन देयर इज अ डिनोमिनेटर स्क्वायर x प्लस y होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका डेल z बाय डेल x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप कैसे सेपरेट करेंगे दैट इज 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन यहाँ पे रहेगा आपका x प्लस y होल स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सिंपली x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y होल स्क्वायर. ऐसे फॉर्म में आएगा आपका रिजल्ट. तो ये हो गया आपका डेल z बाय डेल x. अब और इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आप करके देखो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये कौन से फॉर्म में आ सकता है. सिमिलरली यू फाइंड डेल z बाय डेल y also and then tell me the result of that term, how you get the simplified form of that term. अब अगर यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में आ गई होंगी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है. अब अगर यहाँ पे आप ऐड करोगे और सब्सट्रैक्ट करोगे किसकी टर्म y स्क्वायर की, तो यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करना पड़ेगा और दैट टर्म इज ऑलरेडी माइनस वाई स्क्वायर एंड देयर इज अ x प्लस वाई होल स्क्वायर. ऐसे फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं. सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ रहा है इसका टोटल डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो आप लोग इसको करके देखो आपको कैसे वहाँ पे रिजल्ट मिल सकता है, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं और यू कैन टेक द सेकंड रिजल्ट ऑफ डेल z बाय डेल y and then you take del z by del x minus del z by del y to simplify the result. So you get that result and then you consider that side and put here. So then compare that both term, your result should be in this form. So I will now stop here and we will continue in a next lecture. Thank you.